Good morning, students. Welcome to class 8th SST class. We were studying chapter number 2, Colonization of India from Trade to Territory. In our previous class, we studied the advent of European companies, English East India Company, and in today's class, we will study about the French East India Company. Okay? The French East India Company set up settlements at Chandannagar, Bengal, Mahe, Kerala, Karaikal, and Puducherry on the eastern coast and Mauritius in the Indian Ocean in 1664. So the French East India Company started their settlement. उन्होंने अपना settlement इंडिया में कहाँ कहाँ डाला? चंदननगर, माहे, Karaikal and Puducherry as well as Mauritius in the Indian Ocean in 1664. Okay. The French East India Company was largely a government controlled business और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बिजनेस वेंचर थी. वेंचर मीन्स न्यू प्रोजेक्ट और एक्टिविटी. ठीक है, तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था बिजनेस का जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. एंड फंडिंग वॉज डन बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट और उनको पैसा भी कौन दे रहा था? फ्रेंच गवर्नमेंट. A major role in the expansion of French power in India was played by Dupleix. और जो फ्रेंच पावर था इंडिया में उसका जो एक्सपेंशन हो रहा था उसमें मेजर रोल किसका था? डुप्लेक्स का. डुप्लेक्स वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल एट पौंडीचेरी और पुडुचेरी. और जो डुप्लेक्स थे वो कौन थे? ही वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल एट पौंडीचेरी. ओके. Rivalry in trade. What do you mean by the word rivalry? Rivalry means competition for the same field. किसी भी फील्ड में अगर कोई कंपटीशन होता है उसे हम कहते हैं राइवलरी. और ट्रेड में बहुत ही राइवलरी होती है. एवरीबडी वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट. During the 17th and 18th centuries, rulers of many European countries pursued the policy of mercantilism. Pursued means followed. ठीक है, तो 17th और 18th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे उन्होंने मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज़ मर्केंटिलिज्म, जिसको हम हिंदी में वाणिज्यवाद भी कह सकते हैं या व्यापारिकता भी कह सकते हैं. ठीक है, इट इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ नेशन. ये एक कंट्री की या नेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है in which the main focus is to maximize the export and minimize the import so that maximum income of a country can be done. ठीक है, तो नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए ये किया जाता है. इसमें हम एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करते हैं और इम्पोर्ट को मिनिमाइज करते हैं ताकि कंट्री की नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो. ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शलिज्म. इसे हम व्यापारिकता भी कहते हैं. और क्यों हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं? बिकॉज अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे वी कैन गेट मैक्सिमम फॉरेन करेंसी एंड वी कैन बाय द प्रोडक्ट्स. Therefore, European companies supported by the respective governments came into existence. और इसी कारण बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई. The Royal Charter. What do you mean by the word charter? Charter means written set of rules and regulations. So the Royal Charter was issued by Queen Elizabeth I, however, could not prevent other European powers from entering into the trade and Eastern world. हालांकि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने बहुत कोशिश की so that she could prevent other European powers for entering into the trade. But she couldn't do that. By the time the English appeared and the Portuguese had already established their presence on the western coast of India. धीरे धीरे क्या हो रहा था? इंग्लिश आने लगे इंडिया में एंड पोर्चुगीज़ जो पहले से थे उन्होंने अपना प्रेजेंस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में फैला लिया था. दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर. दे हैड देयर बेस एट गोवा और गोवा उनका क्या था? बेस था. In fact, in 1498, a Portuguese explorer, Vasco da Gama, had discovered the sea route to India. And in 1498, a Portuguese explorer, Vasco da Gama, he discovered the sea route to India. Okay? By the early 17th century,
The Dutch and the French traders also arrived on the scene. और जैसे ही 17th century स्टार्ट हुआ तो जो डच पीपल थे और फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो भी धीरे धीरे आ गए. पहले से पोर्चुगीज़ तो थे ही, इंग्लिश थे ही. नाउ डच एंड द फ्रेंच ट्रेडर्स ऑल्सो अराइव्ड. The presence of so many companies intensified competition and reduced profit. अब क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज हो गई. जैसे पहले इंग्लिश थे, पोर्चुगीज़ थे, धीरे धीरे फ्रेंच आए, ठीक है, डच आए, और इस तरह क्या हो गया, बहुत सारी कंपनीज इंटेंसिफाइड, बिकेम मोर, ढेर सारी कंपनी आ गई कंपटीशन में, एंड देयर प्रॉफिट रिड्यूस्ड. प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया. ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय गुड्स एट लो प्राइसेस इन इंडिया. सारे जो थे, डच, पोर्चुगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, एवरीबडी वांटेड टू बाय द प्रोडक्ट्स in low prices in India so that they can sell them at very high prices elsewhere, particularly in Europe. Okay? The need to secure markets resulted in aggressive wars between the trading companies. और अपने आप को सिक्योर करने के लिए मार्केट में उनके बीच में क्या होने लगा, एग्रेसिव वॉर्स. ठीक है, they started to fight. During this period, trade was carried on with arms and rival countries regularly sank each other's ship, blocked routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. और कैसे वो लोग एक दूसरे को ब्लॉक करते थे, रोकते थे. देयर स्टार्टेड राइवलरी, उन लोगों के बीच एनिमिटी स्टार्ट हो गई, दुश्मनी स्टार्ट हो गई. एंड दे स्टार्टेड टू ब्लॉक द रूट, रास्ता ब्लॉक करने लगे, जो शिप थी उसको डुबाने लगे, और साथ ही साथ राइवल शिप की जो रास्ते थे उनको चेंज कर देते थे. एंड मूविंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रिवेंटेड, उनकी जो शिप थी उनको रोक लेते थे. सो इन दिस वे दे स्टार्टेड द एग्रेसिव फाइट बिटवीन ईच अदर. ट्रेडिंग सेंटर्स वेर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस एंड कंपनीज रेज देयर ओन आर्मीज. और जितने भी ट्रेडिंग सेंटर थे वहाँ पे क्या होने लगा, फोर्टिफिकेशन, उनको और ऊंचा किया गया, उनको और प्रोटेक्ट किया गया ताकि लोग उसके ऊपर अटैक ना कर सकें. एंड द कंपनी रेज देयर ओन आर्मीज़, और उन ट्रेडिंग कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी आर्मीज़ भी बना ली. इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्चुगीज़ एंड द डच वेयर आउस्टेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड. व्हाट डू यू मीन बाय आउस्टेड? आउस्टेड मीन्स डिप्राइव, बेदखल कर देना. ठीक है, तो इसी बीच क्या हुआ, द पोर्चुगीज़ एंड द डच वेयर आउस्टेड, उनको बेदखल कर दिया गया. ठीक है. The English and the French started dominating the trade between India and Europe. पहले 4 लोग थे, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़, ठीक है, एंड इंग्लिश. इन द मीन वाइल पोर्चुगीज़ एंड डच को डिप्राइव कर दिए गए, बेदखल कर दिए गए ट्रेडिंग बिजनेस से. नाउ ओनली 2, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच स्टार्टेड dominating the trade between India and Europe. Anglo-French rivalry. Okay, so the rivalry means enmity. The enmity between French and English people. Around the middle of the 18th century, the English and the French trade interests clashed that resulted in the 3 Anglo-French wars. जैसे ही मिडिल सेंचुरी 18th century का मिडिल आया, क्या हुआ, इंग्लिश और फ्रेंच ट्रेड के जो इंटरेस्ट थे, मतलब इन दोनों कंपनीज के बीच में क्लैश होने लगा. दे स्टार्टेड टू फाइट एंड दैट रिजल्टेड इन द 3 Anglo-French wars. And these wars were referred to as Carnatic Wars, that was held between 1744 to 1763, right? And these wars were called as First Carnatic War, Second Carnatic War and Third Carnatic War. Since most of the war was fought in the region within the state of Tamil Nadu, और जितने भी ये कर्नाटिक वॉर हुए थे ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु में हुए थे. ठीक है, right? Understood? Okay. Hope you understand the topic well. In our next section, we will be studying the next topic. So be prepared for that. And please like and subscribe my video. Thank you so much for watching. Thank you and have a great day ahead.